Hello everyone. So today we will talk about ovulators and embryogenesis. लेकिन embryogenesis जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है embryogenesis and embryogenesis को हम लोग दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2. ओके, सो पार्ट 1 I will upload it today, part 2 I will upload it in the नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो. ओके, तुम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. पार्ट 1 से पार्ट 2 रिलेटेबल ही है. पार्ट 1 जहां तक मैं करा के रखूंगा वहां तक तुम लोग सीख के रख देना. ओके, सो पहले बिफोर वी गो इनटू द एम्ब्रायोजेनेसिस, फर्स्ट वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट ओव्यूलेटर्स. So those who do ovulation they are called as ovulators. Okay, so any female that does ovulation, जिसके ओवरी से egg will come out or secondary oocyte will come out, so any female who does ovulation they are called as ovulators. So ovulators are of two types. Okay, so there are two types of ovulators. The first type is called as induced ovulator. Okay, and then there is another type which is called as spontaneous ovulator. So there is one induced ovulator, another one which is called as spontaneous ovulator. Okay, so what is the difference between these two, or on what basis we are making this typification? Okay, so the basis is induced ovulator can be seen in lower animals. Okay, whereas spontaneous ovulators are none other than the primates. Okay, so primates are spontaneous ovulator. Induced ovulator are those who are lower animals, or you can say even lower mammals, like rabbit. Okay, you can consider like not only lower animals but also lower mammals like rabbit and all. Okay, so what is the difference between the two? For example, in case of induced ovulator, if I take rabbit as an example, I will be able to make you understand properly. Okay, and in case of primates, if I take an example, I will take an example of human. Okay, so induced ovulator का अगर definition लिखना है तो what you are going to write? You will write that copulation is essential for ovulation. Copulation is essential for ovulation. That means the coitus has to happen. If the coitus occurs, then only the female will release eggs. That sensation which comes from the coitus makes the female to shed egg from her ovary. So female does ovulation only when there occurs any copulation or coitus. Okay, so that is the basis. In case of spontaneous ovulator, if you need to write a definition, here you will write that ovulation occurs due to the what? Ovulation occurs due to the hormonal influence. Like what are the hormones? FSH and LH. So we can see in case of human, who made the ovulation to happen. How come ovulation happened in case of human? The ovulation happened in case of human due to the influence of FSH, internal development, LH, the external development of the theca. Okay, यहाँ पे you can also add in bracket irrespective of the copulation. So see, in case of human, the females they continuously ovulate at an interval of 28 days. ऐसा तो नहीं है कि कोइटस होता है तभी ओव्यूलेशन होता है. तो spontaneous ovulator they are not dependent on coitus, but induced ovulator are dependent on coitus. For example, हम लोगों ने रेबिट लिया है, तो रेबिट में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? रेबिट में देखने को मिलेगा that in case of rabbit, the female ovulates 12 to 24 hours after 12 to 24 hours after copulation. Okay, so the female is going to release eggs in case of rabbit when there occurs some kind of copulation between male and female. उसके बाद ही the female is going to release the egg from her ovary at this interval. मतलब कोइटस होने से 12 to 24 hours बाद में. ठीक है,
और तो आई होप ये दोनों तुम लोग को समझ में आया है, ठीक है। तो इसका तुम लोग वीडियो पोस्ट करके नोट बना लेना, क्योंकि ये एम्ब्रायोजेनेसिस और ये जो समझाऊंगा एम्ब्रायोजेनेसिस का नोट मैं भेजूंगा। फिर भी इट्स बेटर कि इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड यू मेक नोट्स फ्रॉम दिस, आफ्टर यू आर डन विथ मेकिंग नोट्स देन यू कैन चेक विथ व्हाट नोट्स आई सेंड टू यू सेपरेटली, ओके। So this is regarding ovulator. Now we will move towards embryogenesis. Okay. So the next topic is the mechanism के लेवल पे लास्ट टॉपिक है ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म के लेवल पे लास्ट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझना। देखो एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो यू आई होप यू नो व्हाट इज एम्ब्रायोजेनेसिस। जेनेसिस माने फॉर्मेशन। सो हियर वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन embryo, how the zygote converts into a complete baby, how that zygote converts into a complete baby, that is what we are discussing over here, okay. So first thing you should know is that embryo हम लोग किसको बुलाते हैं? From first day till 9 week, ये जो टाइम है, इस टाइम में मदर के पेट के अंदर जो भी डेवलप हो रहा है उसको हम लोग एम्ब्रायो बुलाएंगे, ठीक है। फीटस हम लोग बुलाते हैं किसको? फीटस हम लोग बुलाते हैं 9 वीक्स क्रॉस करने के बाद, 9 वीक्स से लेके टिल पार्टूरिशन, ठीक है, टिल वो बच्चा बाहर आने तक हम लोग उसको फीटस बुलाते हैं, ठीक है। बाहर आने के बाद तो नाम रख देंगे। अच्छा, एम्ब्रायोजेनेसिस जो है, एम्ब्रायोजेनेसिस में हम लोग को 5 स्टेप्स मिलेगा, ठीक है। उन 5 स्टेप्स में से पार्ट 1 में आई विल टॉक अबाउट 2, मे बी पढ़ाते पढ़ाते अभी मूड आ गया तो 3, एंड नेक्स्ट वाले पार्ट में यू विल हैव द रिमेनिंग पोर्शन, ओके। सो देयर आर 5 स्टेप्स फॉर एम्ब्रायोजेनेसिस। सो व्हाट आर दोस 5 स्टेप्स? फर्स्ट ये जान लेते हैं, ठीक है, ये 5 स्टेप क्या है, और फिर इन 5 स्टेप के अंदर ईच स्टेप में क्या क्या इवेंट्स हो रहा है वो भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो 5 स्टेप्स में सबसे पहला जो स्टेप है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको हम लोग बुलाते हैं क्लीवेज फॉर्मेशन, ठीक है। क्लीवेज फॉर्मेशन क्या है, क्या इवेंट्स होता है इसके अंदर, ये पढ़ेंगे अभी थोड़े देर। जो सेकंड है उसको हम लोग बुलाते हैं ब्लास्टुलेशन, ठीक है। द सेकंड वन इज कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन। द थर्ड वन विल बी कॉल्ड एज implantation. Fourth one is called as gastrulation, okay, and the fifth and the last one is called as organogenesis, okay. So these are the 5 steps of embryogenesis, and in these 5 steps there are several events which occurs inside the uterus of the mother, and because of those events a single cell zygote turns into a complete baby. So what are those events, what happens, how pregnancy मतलब pregnancy के दौरान क्या होता है, that we will study under these 5 points, okay. So now I am going to start with cleavage formation, gradually we will move to the other steps, okay. So these are the 5 steps, बस मैंने नाम यहाँ पे लिखा है so that you be acquainted with the names, okay. So cleavage formation, okay. So बार बार मैंने बोला है for the first cleavage, for the first I hope you understand what is cleavage. पकड़ लो, ये तुम लोगों ने ये बहुत बार पढ़ा है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन बहुत बार पढ़ा होगा। तो बाइनरी फिजन पकड़ लो, दिस इज वन सेल, this cell is doing binary fission. So what occurs in this cell, what will happen? ये सेल अपना सेल साइकिल करेगा, और सेल साइकिल करके जब ये अपना कौन सा फेज में जाएगा, एस फेज में जाएगा। तो एस फेज में ये सेल अपना क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करके सेम आइडेंटिकल डीएनए बना लेता है, फिर एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस इधर, है ना। उसके बाद ये दोनों सेल सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या है, ये जो एक पार्टीशन जैसा आ रहा है जो धीरे धीरे क्या करेगा, दोनों सेल को अलग कर देगा, इसको अपन लोग
क्लीवेज बुलाते हैं. सो दिस इज व्हाट इज क्लीवेज. Okay, so first is the cleavage formation, because whenever the cleavage formation will occur, one cell will become two. The zygote will have to become multicellular, is not it? So for becoming a multicellular organism, it will have to do what? Cell division. So cell division जब भी होता है तो cell division में ये जो एक furrow जैसा आता है जो एक cell को दो cell में divide करता है, that furrow is called as cleavage. Okay. So I hope you understood what cleavage is. Okay, so for the first cleavage, we know proximal centriole has an important role. I miss role. Okay, आगे बढ़ते हैं. For the first cleavage formation, proximal centriole has an important role. Without proximal centriole पहला cell division नहीं हो सकता है. उसके बाद से cell division अपने आप होता रहेगा. ठीक है. अच्छा, first cleavage occurs, कुछ important events है यहाँ पे, अच्छे से ध्यान से. हाँ, so first cleavage occurs after 30 hours of फर्टिलाइजेशन. ठीक है. एक सेल क्या बुलाएंगे? जाइगोट. पहला क्लीवेज हुआ, क्या बन गया? दो सेल में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. अच्छा, ह्यूमन के क्लीवेज फॉर्मेशन में, ह्यूमन के सेल डिवीजन में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सेल डिवीजन जब होता रहता है ना, तो सेल का नंबर्स बढ़ता है, साइज नहीं बढ़ता. ओके, बिकॉज ये सेल जब अपने आप को डिवाइड करके यहां पे आएगा तो ये सेल अपना G1 एंड G2 फेज नहीं करेगा टिल सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. सेल डिवीजन जब जाइगोट का चलते रहेगा, तो जब सेल डिवीजन चल रहा है तब ये जो सेल 1 से 2 बन रहा है, 2 से शायद 4, 4 से शायद 8, जो भी बन रहा है, तो ड्यूरिंग दैट सेल डिवीजन द सेल्स दे डू नॉट डू द G1 फेज एंड G2 फेज. सेल साइकिल से रिलेटेड है. ओके, दे विल डू S फेज. They will do S phase and due to that S phase इनका जेनेटिक मटेरियल वो क्या होते रहेगा, वो S phase कॉपी बनाएगा, बना के एक सेल 2 बन जाएगा. लेकिन देखो इसका साइज जितना था, इसका साइज क्या है? ऑलमोस्ट सेम है. दैट मींस क्या हुआ? बस एक सेल से 2 सेल बना, इसका जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन करके 2 बना, एक जेनेटिक मटेरियल इधर, एक जेनेटिक मटेरियल इधर. लेकिन इन सेल्स का साइज नहीं बढ़ा क्योंकि इन सेल्स ने G1 एंड G2 फेज नहीं किया. ठीक है. ये एक टाइम तक नहीं होगा. ठीक है ना, जब तक जर्मिनल लेयर्स फॉर्म नहीं हो जाता है, जब तक गेस्ट्रुलेशन, द फोर्थ पार्ट, जब तक गेस्ट्रुलेशन नहीं आता है, तब तक जितना भी सेल डिवीजन होगा वो सारा सेल डिवीजन में G1 एंड G2 फेज नहीं होगा, सिर्फ S फेज होगा. इसके वजह से सेल का नंबर्स बढ़ेगा, सेल का साइज नहीं बढ़ेगा. ठीक है. तो पहला क्लीवेज हुआ, जाइगोट. देखो एक सेल था और जाइगोट किधर जाइगोट बना था, सब चीज कनेक्टेड है, लेकिन हाँ जाइगोट बना था एम्पुला में. ठीक है ना. वो एम्पुला से, जब तक ये जाइगोट एम्पुला से यूटेरस आएगा तब तक ये जाइगोट 1 सेल स्टेज से ये जाइगोट अपने आप को मोटा मोटी 8 to 16 सेल स्टेज पे लेके आ जाता है. ठीक है ना. तो कैसे आएगा 8 to 16 सेल स्टेज में? यही क्लीवेज फॉर्मेशन कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है, जिसके वजह से सेल का नंबर्स बढ़ रहा है. G1 G2 फेज नहीं कर रहा है, इसलिए सेल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बस नंबर्स बढ़ रहा है. एक स्टेज जाने के बाद ग्रोथ भी होगा. इसलिए हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्या देखते हैं, कुछ टाइम तक उनका बेली जो है 3 मंथ्स तक ऑलमोस्ट क्या रहता है, फ्लैट रहता है. 3 मंथ्स के बाद धीरे धीरे बल जाना चालू होता है. तो वो इनिशियली 1 मंथ 2 मंथ इवन की 3 मंथ तक हम लोग को इतना बल्ज क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये जो सेल है, ये सेल अपना सिर्फ नंबर्स बढ़ा रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है. ग्रोथ करेगा आफ्टर वी रीच द गेस्ट्रुलेशन स्टेज. ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ आना चालू होता है. ठीक है. अच्छा, तो पहला क्लीवेज आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन कब हुआ? 14 को. अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्ट करें, 14 को फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके 30 आवर्स बाद हमको पता है कि 14 को अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, 14 को जाइगोट फॉर्म हुआ, ये जाइगोट जाके यूटेरस में कब पहुंचेगा? 20 को. 6 डेज चाहिए उसको यूटेरस में पहुंचने में. ये 6 डेज में ये जाइगोट यूटेरस पहुंचने तक सेल डिवीजन तो करेगा, और करके क्या बनेगा? ये जाइगोट
8 to 16 सेल स्टेज में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। और जब ये जाइगोट अपने आप को 8 to 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट करता है तो हम लोग इसको एक अलग नाम से बुलाते हैं। हम लोग इसको क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट मोरूला। ठीक है, वी कॉल इट मोरूला। ठीक है, एक सेकंड बस होल्ड पे रहना। एक्चुअली कल मैं वीडियो बनाते बनाते किसी का कॉल आ गया और कॉल आने के वजह से मतलब वो बीच में ही वीडियो रुक गया, इसलिए कल एप्स का वीडियो 2 पार्ट में करना पड़ा। अभी इसलिए फ्लाइट मोड में डाला है। ओह माय गॉड, अच्छा ठीक है, तो यहां तक आई होप तुम लोग को ये वाला समझ में आया है। सिमिलरली हम लोग को ऐसा मिलेगा कि जो सेकेंड क्लीवेज होगा, सेकेंड क्लीवेज ऑल्सो occurs after same 30 hours of first cleavage formation। ठीक है, तो पहला 2 जो क्लीवेज होता है उन दोनों में टाइम लगता है, नियर अबाउट 30 आवर्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन पहला क्लीवेज को होने में, देन अनदर 30 आवर्स फ्रॉम फर्स्ट क्लीवेज से सेकंड क्लीवेज होने में। उसके बाद से टाइम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन पहला 2 क्लीवेज में पूरा 30 आवर्स लगेगा, उसके बाद से जितना क्लीवेज होगा उसमें टाइम कम हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, यू माइट बी थिंकिंग कि जब पहला क्लीवेज हुआ तो पहला क्लीवेज में 1 से 2 बना, तो सेकंड क्लीवेज के बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि 2 से 4 बना होगा? ऐसा नहीं होता है। सेकंड क्लीवेज में हम लोग देखेंगे 2 से 3 बना होगा। ये जो नीचे वाला है सिर्फ इसमें डिवाइड हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला में हुआ नहीं, तो 2 से 3 बनता है। तो यहाँ पे हम लोग को कोई एक सिंक नहीं मिल रहा है कि 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना। ह्यूमन क्लीवेज में इस तरीके का कोई सिंक नहीं होता है। 1 से 2 बनता है, 2 से 3 बन सकता है, 3 से 8 बन जाएगा, 8 से कुछ बन गया, लाइक दैट। तो ह्यूमन का जो क्लीवेज फॉर्मेशन का जो तरीका है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इसको हम लोग बुलाते हैं द ह्यूमन क्लीवेज फॉर्मेशन इज, या ह्यूमन एम्ब्रायो शोज एसिंक्रोनस क्लीवेज फॉर्मेशन। एसिंक्रोनस, देखो कोई सिंक नहीं है इसलिए एसिंक्रोनस बुलाया है, क्योंकि 1 से 2 बन रहा है और 2 से 3 बन रहा है, 3 से 8 बन जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, तो इट्स एन एसिंक्रोनस क्लीवेज फॉर्मेशन। इसके अलावा तुम लोग को एक और पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि क्लीवेज फॉर्मेशन in humans is slowest in entire animal kingdom। ठीक है, पूरे एनिमल किंगडम में ह्यूमन का क्लीवेज फॉर्मेशन सबसे स्लोवेस्ट होता है। ठीक है, तो क्लीवेज फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आएगा? क्लीवेज फॉर्मेशन के अंदर ये सब इवेंट्स आएगा। एंड लास्टली हम लोग को ये याद रखना है कि क्लीवेज फॉर्मेशन जो है, क्लीवेज फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे जो हमारा जाइगोट है, अंडर दिस हम लोग ये बोल सकते हैं कि जाइगोट अंडर क्लीवेज फॉर्मेशन बिकम्स मोरूला। ठीक है, 1 से वो 8 to 16 सेल स्टेज में चला जाता है तो वो मोरूला बन जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग अगर देखें तो इस तरीके का कुछ हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, 8 to 16, यहाँ पे मैंने 8 ही ड्रॉ किया है, तो ये मोरूला है। ठीक है, जाइगोट था वो अभी मोरूला बन चुका है। ठीक है, जाइगोट के ऊपर कितना कवरिंग था? वाइटेलिन मेम्ब्रेन जाइगोट बनते ही डिसॉल्व हो जाता है, तो जोना पेलुसिडा है और कोरोना रेडियाटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ये हो गया जोना पेलुसिडा और इसके ऊपर ये हो गया कोरोना रेडियाटा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज तुम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने नोट्स में कि जब जाइगोट क्लीवेज फॉर्मेशन करते हुए, मोरूला बनते हुए, जब जाइगोट नीचे के तरफ आता रहता है, फैलोपियन ट्यूब का नीचे के तरफ आता रहता है और आके जब वो यूटेरस में गिरता है, तो ये जो जर्नी है एम्पुला से यूटेरस तक का, एम्पुला से यूटेरस तक का जर्नी में जाइगोट क्या बन गया? सेल डिवीजन कर करके मोरूला। एज वेल एज जाइगोट ने क्या किया या फिर मोरूला ने क्या किया? उस जर्नी में कोरोना रेडियाटा को शेड कर दिया। तो जब जाइगोट बना तब वाइटेलिन मेम्ब्रेन शेड हो गया, और जब जाइगोट क्लीवेज फॉर्मेशन करके अपना सेल नंबर्स बढ़ाते हुए जब वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूटेरस में आता है, तो उस जर्नी में वो अपना
सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा को भी शेड कर देता है। दैट मींस यूटेरस में 20th को आके क्या पहुंचा, यूटेरस में 20th को आके पहुंचा मोरूला विच इज सराउंडेड बाय ओनली वन मेम्ब्रेन दैट इज जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं द जाइगोट बिकम्स मोरूला, और ये वाला लेयर को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, जाइगोट बिकम्स मोरूला। ठीक है, ये जो अंदर का है ये मोरूला है, ये है जोना पेलुसिडा। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोरोना रेडिएटा इज शेडेड अलोंग द जर्नी टू द यूटेरस। ठीक है, ये जो यूटेरस तक का जो जर्नी था उस जर्नी में कोरोना रेडिएटा को शेड कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप यहां तक तुम लोग को समझ में आया है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस अंडर क्लीवेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब एसिंक्रोनस क्लीवेज फॉर्मेशन इज स्लोएस्ट इन एनिमल किंगडम। ठीक है, बाद में टाइप्स ऑफ क्लीवेज ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एकदम लास्ट का टॉपिक है। बेसिकली एनसीईआरटी में इतना अच्छा से है ही नहीं रिगार्डिंग क्लीवेज, लेकिन कभी कभी अच्छा एंट्रेंसेस में क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आई होप तुम लोग का क्लियर हुआ है। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना और अच्छे से उसको नोट में लिखना। ठीक है, सो दिस इज क्लीवेज फॉर्मेशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ब्लास्टुलेशन। ठीक है, बहुत गर्मी लग रहा है, आज ब्लास्टुलेशन तक ही कराऊंगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लांटेशन, देन गेस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, वो मैं पार्ट 2 में डालूंगा। ठीक है, ओके, सो जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप को हम लोग क्या बुलाते थे? सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन। सो व्हाट आर द इवेंट्स दैट ऑकर्स इन ब्लास्टुलेशन? ओके, नाउ देखो पूरा कहानी के जैसा है, अच्छे से समझना। नाउ हमको पता है दैट ऑन 20th इज नॉट इट, ऑन 20th हमारा जो मोरूला है, ठीक है, इसको ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं 20th को, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये मान लेते हैं ये है यूटेरस। ओके, तो ये यूटेरस है और इसको ऐसे करके यूटेरस बना देते हैं। तो दिस इज यूटेरस दैट आई हैव ड्रॉन। ओके, सो इन दिस यूटेरस यू कैन से दैट दिस लेयर इज मायोमेट्रियम, ये जो बीच का है, दैट मीन्स ये जो ब्लू में है वो एंडोमेट्रियम है और ये जो ब्लैक में है वो पेरीमेट्रियम है। ठीक है, तो ब्लैक वाला पेरीमेट्रियम, ब्लू वाला एंडोमेट्रियम और बीच का जो है वो मायोमेट्रियम। ठीक, ओके, हमको पता है कि इसके अंदर आके पहुंच चुका है एक मेम्ब्रेन लेते हुए, ओनली सिंगल मेम्ब्रेन लेते हुए यहाँ पे आके पहुंचा है कौन? यहाँ पे आके पहुंचा है मोरूला। ठीक है, सो यहाँ पे ये मैं अंदर में मोरूला को ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब मोरूला जो है वो तो अपना सेल डिवीजन जारी रख रहा है। ओके, नाउ यू कैन आस्क मी कि ये जो सेल डिवीजन मोरूला ने किया, ठीक है, फ्रॉम हम लोगों ने देखा फ्रॉम एम्पुला टू यूटेरस, ये जो जर्नी है एम्पुला से यूटेरस तक का, इस जर्नी में हम लोगों ने देखा कि एक सिंगल सेल दैट इज जाइगोट, ठीक है, एक सिंगल सेल जो जाइगोट था वो जाइगोट सेल डिवीजन कर करके अपने आप को 8 to 16 सेल स्टेज में ले आया, जिसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? मोरूला। तो ये जो एक सेल से वो अपने आप को 8 to 16 सेल स्टेज में लेके आया, ये लेके आने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होगा कि नहीं? एक सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए भी तो सेल को न्यूट्रिशन चाहिए होगा। वो न्यूट्रिशन कहां से आया, किसने दिया? देखो यहां पे आता है वो चीज कि जब प्राइमरी यूसाइट से सेकेंडरी यूसाइट बना तो सेकेंडरी यूसाइट ने सब कुछ क्यों ले लिया था? जब सेकेंडरी यूसाइट से एग बना तो एग ने सब कुछ रिटेन क्यों किया था? साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। बिकॉज इस जर्नी में ये जो सेल डिविजन होगा, इन सेल डिवीजन में एक न्यूट्रिशन चाहिए होगा। वो न्यूट्रिशन कहां से आएगा? वो न्यूट्रिशन वहां से आएगा कि
प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte बना तो सेकेंडरी oocyte ने सारा साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल ले लिया, एक पोलर बॉडी रखा बस। सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा था तब जब क्या बन गया, एग बन गया, तो एग ने भी सेकेंडरी oocyte से सारा साइटोप्लाज्म ले लिया। तो वो जो सारा साइटोप्लाज्म लिया, सेल ऑर्गेनेल्स लिया, काय को लिया, इसलिए लिया सो दैट फेलोपियन ट्यूब में कोई अलग मीडियम से न्यूट्रिशन आने का तो चांस नहीं है। तो फेलोपियन ट्यूब का जो जर्नी होगा 14 से 20 जो टाइम चाहिए फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट को यूटेरस में पहुंचने का, वो 6 दिन जाइगोट तो सेल डिवीजन करेगा और उस सेल डिवीजन में जो एनर्जी चाहिए वो आएगा फ्रॉम द रिटेन्ड साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो यहां ये समझ के रखो कि इस जर्नी में जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन चाहिए था वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन वाज गिवन बाय द retained cytoplasm and cell organelle of the egg। ठीक है, ये समझ में आया होगा सब लोग को। ठीक है, नाउ हमको पता है ये जो अंदर को पहुंचा है इसको हम लोग मोरूला बुलाते हैं, या ये जो अंदर का जो ये मोरूला है, इस मोरूला को यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इनर सेल मास। ओके, बिकॉज ये सेल डिवीजन जो है, ये सेल डिवीजन तो चलते जाएगा, इसके ऊपर ट्रैक रखना कितना सेल बना नहीं बना, वैसे भी एसिंक्रोनस क्लीवेज है। ठीक है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है कि 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा कि नहीं, 4 से 8 बनेगा कि नहीं, 1 से 2 बनता है, 2 से 3 बनता है, 3 से 8 बन जाता है, 8 से कुछ 19 बन जाएगा, लाइक दैट। तो कोई सिंक नहीं है, तो सेल नंबर्स के ऊपर काउंट रखना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग कभी कभी ये जो अंदर का सेल्स जो बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर मोरूला है, लेट्स कंसीडर दिस मोरूला एज इनर सेल मास, आईसीएम लिखा है, इनर सेल मास। ओके, और ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है ब्लैक में, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा। ओके, ये मायोमेट्रियम, ये जो बाहर में ब्लैक में है ये पेरीमेट्रियम, और ये जो अंदर में है ये एंडोमेट्रियम। ठीक है, और ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये कब हो रहा है, ये 20th को हो रहा है। अब सोचो 20th को एंडोमेट्रियम क्या होगा, 20th को एंडोमेट्रियम होगा फुल्ली फंक्शनल। ठीक है कि नहीं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कीप्स एंडोमेट्रियम एक्टिव, है ना। फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम got developed by the estrogen released from theca, and after 14 till 28 endometrium will be kept completely active by whom, by the progesterone which is released from whom, the corpus luteum। so 20th को जब ये इनर सेल मास या जब ये मोरूला कहां पहुंचा, यूटेरस में पहुंचा, तब एंडोमेट्रियम फुल्ली फंक्शनल है। अब क्या होगा, जैसे ही मोरूला यूटेरस के अंदर आ जाता है उसके बाद ये जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो मतलब एग्जॉस्टेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, जो एग साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स को जो एग रिटेन करता है दैट इज ओनली फॉर द जर्नी फ्रॉम एम्पुला टिल यूटेरस। जब तक वो एम्पुला से यूटेरस पहुंचेगा तब तक वो मोरूला बन चुका होगा, और मोरूला बनने में वो सारा एनर्जी, वो सारा स्टोर्ड फूड यूज हो जाएगा। इसका मतलब जब मोरूला इधर पहुंचेगा इसके बाद मोरूला के पास खुद का और खाना नहीं है। मोरूला को अभी अगर आगे जाना है उसको खाना कुछ अलग सोर्स से चाहिए होगा। वो सोर्स कौन है, वो सोर्स है एंडोमेट्रियम। क्योंकि 20th को एंडोमेट्रियम इज फुल्ली फंक्शनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब क्या होगा, जैसे ही ये मोरूला इधर पहुंचेगा ये एंडोमेट्रियम यहां से क्या रिलीज करेगा, ये एंडोमेट्रियम यहां से रिलीज करेगा न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन आके दो चीज करेगा। ठीक है, पहला ये न्यूट्रिशन क्या करेगा, आएगा आके सीधा इसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर घुस के ये जो इनर सेल मास है, इस इनर सेल मास को और आगे बढ़ने का जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन चाहिए, वो मतलब आगे बढ़ने का मतलब और आगे सेल डिवीजन करने का जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन चाहिए दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय एंडोमेट्रियम। सेकेंड थिंग दैट द एंडोमेट्रियम विल डू इज दैट एंडोमेट्रियम का बेसिकली दो फंक्शन है। एक, एंडोमेट्रियम क्या करेगा, एंडोमेट्रियम रिलीजेस, करंट चला गया, ओमा एक और इन्वर्टर लाइट नहीं मां, एक और इन्वर्टर लाइट नहीं नी
सॉरी करंट चला गया था। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम दो चीज करेगा, रिलीजेस न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन रिलीज करेगा, और ये जो न्यूट्रिशन रिलीज कर रहा है, ये न्यूट्रिशन क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन ड्राइव्स द सेल डिवीजन, ठीक है, ऑफ इनर सेल मास, ठीक है, ड्राइव्स द सेल डिवीजन ऑफ इनर सेल मास। दूसरा चीज जो एंडोमेट्रियम करेगा, क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम शेड्स सेल्स, कुछ कुछ सेल्स ये एंडोमेट्रियम शेड कर देता है। तो यहां से एक तो न्यूट्रिशन छोड़ा जो इस इनर सेल मास को आगे सेल डिवीजन करने का एनर्जी देगा, सो दैट ये इनर सेल मास आगे सेल डिवीजन करता रहे। दूसरा चीज ये क्या करेगा, ये यहां से कुछ सेल्स रिलीज करेगा, और वो सेल्स क्या होगा, आएगा और आके ये सेल्स, ये जो जोना पेलुसिडा है, ये जोना पेलुसिडा के अकॉर्डिंगली यहां पे ऐसे करके ये सेल्स जोना पेलुसिडा के मार्जिन में इस तरीके से सेटल होना चालू होगा। अच्छे से समझ लो एंडोमेट्रियम क्या करता है जब मोरुला इधर पहुंचता है। दो चीज करता है, मोरुला का अपना खुद का एनर्जी खत्म, मोरुला अगर आगे और सेल डिवीजन करना चाहता है, दूसरा सोर्स से एनर्जी चाहिए, कौन दे रहा है, एंडोमेट्रियम, ठीक है, जो आगे का सेल डिवीजन को चालू रखेगा, आगे का सेल डिवीजन चालू रखेगा, दैट मींस मोरुला को और आगे सेल डिवीजन करने में मदद करेगा। दूसरा चीज एंडोमेट्रियम करेगा क्या, अपने से कुछ कुछ सेल्स निकाल के भेज देगा, बोलेगा सेल्स तुम जाओ और जाके तुम क्या करो, जोना पेलुसिडा के मार्जिन में जाके तुम प्रॉपरली सेटल हो जाओ। जिस मोमेंट पे ये शेडेड सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम इस जोना पेलुसिडा के इर्द गिर्द आके सेटल हो जाएगा, तब और ये जोना पेलुसिडा नहीं रहेगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग बुलाएंगे ट्रोफोब्लास्ट, और इसको हम लोग बुलाएंगे ट्रोफोब्लास्ट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ट्रोफोएक्टोडर्म। देखो समझ में आया ही होगा, ठीक है, बहुत करने लग रहा है, समझ में आया ही होगा कि यहां से जो सेल्स निकल के आया एंडोमेट्रियम से, वो सेल्स आके अपने आप को यहाँ पे अलाइन किया। जैसे ही एक सीरियल अलाइनमेंट बना, ये लेयर और जोना पेलुसिडा नहीं रहेगा, इस लेयर का नाम चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। ठीक है, समझ में आया यहां तक? ओके, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे साइड में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, इसलिए ये वाला पार्ट में मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अब हम लोग को पता है ये जो लेयर था, ये जब यहाँ पे आया था तब ये जोना पेलुसिडा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आके एंडोमेट्रियल सेल्स ने अपना डेरा बसा लिया, तब ये जोना पेलुसिडा और नहीं रहा, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म। ठीक है, प्लस अंदर का सेल डिवीजन लेकिन चालू है, क्योंकि न्यूट्रिशन आ रहा है तो अंदर का सेल डिवीजन चालू है। ठीक है, तो जिस मोमेंट पे ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म फॉर्म होता है, जिस मोमेंट पे ये फॉर्म हो जाएगा ये वाला लेयर, उस टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं, ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास जब यहां पे आया था, तब ये इनर सेल मास 8 to 16 सेल स्टेज पे था जब यहां पे आया था। ठीक है, इनर सेल मास हम लोग यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, वाइल एंटरिंग यूटेरस, जब यूटेरस में आके घुसा तो इनर सेल मास 8 to 16 सेल स्टेज पे था, मोरुला था। लेकिन जब तक ये आया, आने के बाद न्यूट्रिशन आया, सेल डिवीजन इसका चालू है, सेल्स आया, अपने आप को अलाइन किया, ये बन गया ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। ये बनने के साथ नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि ये सेल डिवीजन जो चालू था उसके वजह से इनर सेल मास का काउंट 64 सेल स्टेज तक पहुंच चुका है, और 64 सेल स्टेज जब पहुंचता है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग ब्लास्टुला बुलाते हैं। ठीक है, 8 to 16 सेल स्टेज मोरुला, सेल डिवीजन चालू है बिकॉज एंडोमेट्रियम न्यूट्रिशन दे रहा है। ठीक है, जैसे ही न्यूट्रिशन मिलेगा, ये इनर सेल मास और सेल डिवीजन करेगा, अपने आप को ब्लास्टुला बना लेगा। ठीक है, तो ये इनर सेल मास अब ब्लास्टुला के लेवल पे चला गया है। आफ्टर बीइंग ब्लास्टुला के लेवल पे जाने के बाद क्या होगा, ब्लास्टुला के लेवल पे जाने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये जो इनर सेल मास है, ठीक है, ये इनर सेल मास अपने आप को, ठीक है, एक पोल के तरफ ले जाके अटैच कर लेता है। देखो ये इनर सेल मास कहां पे है, फिलहाल अगर हम लोग देखें ये इनर सेल मास बीच में है, लेकिन जैसे ये इनर सेल मास का काउंट 64 हो जाएगा, तब ये इनर सेल मास यहां से ऊपर के तरफ माइग्रेट करेगा और अपने आप को एक तरफ ले जाके अटैच कर लेगा। ठीक है ना,
तो जिस तरफ अपने आप को ले जाके ये इनर सेल मास अटैच करेगा उस वाले साइड को हम लोग बुलाते हैं क्या, उस वाले साइड को हम लोग बुलाते हैं एनिमल पोल। तो जिस तरफ ये इनर सेल मास अपने आप को ले जाके अटैच करता है उस पोल को हम लोग एनिमल पोल बुलाते हैं, या फिर ये जो जगह है ये वही जगह है, ठीक है ना, जहां से आगे जाके हम लोग देखेंगे प्लेसेंटा भी फॉर्म होगा, ठीक है। एज वेल एज ये जो जगह है इस जगह को हम लोग ग्रे क्रिसेंट एरिया भी बोलते हैं। कोइंसिडेंस ये है कि ये वही साइड है जिस साइड से स्पर्म ने एंट्री किया था, ठीक है ना। वो एम्पुला में जब स्पर्म एंट्री करता है कि नहीं, तो पहला फर्टिलाइजेशन कोन जिस तरफ फॉर्म होता है जहां से स्पर्म घुसता है, तो कोइंसिडेंटली ये वही जगह है जहां जिस तरफ से स्पर्म ने एंट्री लिया था, ठीक है ना। तो इस एरिया को हम लोग एनिमल पोल बुलाते हैं, या फिर ये एरिया का एक शेड ग्रे कलर का शेड जैसा आता है, इसलिए हम लोग इसको ग्रे क्रिसेंट एरिया भी बुलाते हैं। और ये जो उल्टा वाला जगह होगा, उल्टा वाला मतलब जिस तरफ ये इनर सेल मास आया नहीं, उस जगह को हम लोग बुलाते हैं एब एम्ब्रायोनेल पोल, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया है तुम लोग को कि ये जो ऊपर जिस तरफ ये इनर सेल मास ब्लास्टुला बनने के बाद ये इनर सेल मास जिस तरफ जाके अपने आप को सेटल करता है उसको हम लोग एनिमल पोल बुलाते हैं, उसको हम लोग ग्रे क्रिसेंट एरिया बुलाते हैं क्योंकि इसका एक ग्रे शेड आता है। ये वही एरिया है जिस तरफ इनर सेल मास जाके कंसंट्रेट भी होता है, और ये वही जगह है जिस तरफ से स्पर्म ने एंट्री लिया था एग मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है ना। और जिस तरफ इनर सेल मास नहीं आता है तो उसको हम लोग बुलाते हैं एब एम्ब्रायोनेल पोल, ठीक है। तो यहां तक आई होप समझ में आया है तुम लोगों को, ठीक है। नीचे का पार्ट को भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एम्ब्रायोनल एनिमल पोल, एब एम्ब्रायोनल पोल, आई होप ये वाला पोर्शन तुम लोग का क्लियर हुआ है, ठीक है ना। एक और चीज समझ लेना कि ये जो अभी स्ट्रक्चर बना है ये तो इनर सेल मास, ठीक है। अभी ये इनर सेल मास ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो गया, तो ये जो रीजन है ना, अच्छे से, हाँ, ये जो रीजन है ये, ठीक है, अच्छे से देखो, ये यहाँ पे इनर सेल मास, हाँ, और ये तो ट्रोफोब्लास्ट है अभी। तो ट्रोफोब्लास्ट का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, दैट मींस यहां से लेके यहां का हिस्सा, मतलब दैट पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट व्हिच इज लाइनिंग इनर सेल मास, दिस पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इज नॉट इन कांटेक्ट विद इनर सेल मास, दे आर नॉट लाइनिंग इनर सेल मास, बट दिस पोर्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, रेड से मैं कर देता हूं, दिस पोर्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट जो इनर सेल मास का लाइनिंग कर रहा है, ठीक है। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे दिस पार्ट ऑफ टी माने ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, दिस पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, एंड ये जो हमारा इनर सेल मास जो अभी 64 सेल स्टेज पे है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली बुलाया जाता है एम्ब्रायोनेल नोब, ठीक है। तो इनर सेल मास जिस तरफ जाके शिफ्ट होता है उस जगह का जो ट्रोफोब्लास्ट उसको लाइनिंग देता है, सो दैट पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड द इनर सेल मास, दिस टू आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एम्ब्रायोनेल नोब, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या होगा, अब ये इवेंट के जैसा हो रहा है, देखो, दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग लाइक एन इवेंट। अब जिस मोमेंट पे एम्ब्रायोनल नोब बन जाता है, द मोमेंट एम्ब्रायोनल नोब इज फॉर्म, उस मोमेंट पे क्या होगा, ये जो इनर सेल मास है इसका तो ये इधर चला गया, ये एम्ब्रायोनल नोब है ना। तो जिस मोमेंट पे एम्ब्रायोनल नोब फॉर्म हो जाता है उसका नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, ये जो रिमेनिंग ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, ये रिमेनिंग ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अपना अंदर के तरफ कुछ फ्लूइड छोड़ता है, और वो फ्लूइड ये जो जगह है इस जगह पे जाके भर्ती हो जाता है। इस जगह को हम लोग बुलाते हैं क्या, ब्लास्टोसील, ठीक है। द मोमेंट दिस प्लेस इज गोइंग टू गेट फिल्ड अप विद द रिमेनिंग ट्रोफोब्लास्ट सेल, दिस प्लेस और दिस खाली पोर्शन, ये तो इनर सेल मास है, लेकिन ये जो खाली पोर्शन है इस खाली पोर्शन को हम लोग क्या बुलाएंगे, ब्लास्टोसील बुलाएंगे, ठीक है। सो विद द फॉर्मेशन ऑफ, सो हम लोग यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, विथ द फॉर्मेशन ऑफ टू थिंग, क्या क्या, विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसील, ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसील, ये जो स्ट्रक्चर अभी तुम्हारा यहां पे बना है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग एज ए होल
एज ए होल इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एज ए होल स्ट्रक्चर को हम लोग बुलाते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो जिस मोमेंट पे इनर सेल मास का सेल काउंट 64 सेल स्टेज तक पहुंच जाएगा एंड पहुंचने के बाद, ठीक है, पहुंचने के बाद ये अपने आप को इस तरफ ले जाके सेटल कर लेगा। तो जिस तरफ जाके सेटल होगा वो एनिमल पोल, जिस तरफ सेटल नहीं होगा एब एम्ब्रायोनल पोल। ठीक है, जहां पे जाके सेटल होगा वहां पे इनर सेल मास प्लस ये जो ट्रोफोब्लास्ट का हिस्सा है, इन दोनों को कलेक्टिवली एम्ब्रायोनल नोब। द मोमेंट एम्ब्रायोनल नोब इज फॉर्म, the remaining trophoblast cells are going to fill the internal space with some fluid। जैसे ही ये internal space fluid से भर्ती हो जाएगा, इस internal space को हम लोग ब्लास्टोसिल बोलते हैं। ब्लास्टोसिल प्लस ब्लास्टुला collectively called as blastocyst, and with the formation of blastocyst, blastulation is completed। ठीक है, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, दैट मींस जैसे ही लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप क्या है, ब्लास्टोसील का बनना, क्योंकि ब्लास्टुला तो पहले ही बन जाएगा। तो जैसे ही ब्लास्टोसील का बनना होगा, खल्लास खत्म, उस मोमेंट पे हम लोग इस स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुलेशन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 3, इम्प्लांटेशन। अब हम लोग देखेंगे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसा होगा, ये एम्ब्रायो ऐसा क्या करेगा जिसके वजह से ये एम्ब्रायो प्लेसेंटा फॉर्म कर पाएगा, ये है नेक्स्ट पार्ट में मैं दूंगा। ठीक है, सो थोड़ा सा बड़ा है एम्ब्रायोजेनेसिस और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और काफी इवेंट्स है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए वीडियो ध्यान से सुनना, लगने से बार बार सुनना। ठीक है, लेकिन एकदम कंसेप्ट्स क्लियर होना मांगता है। मैं इसको इजीली भी पढ़ा सकता था एकदम कम चीज बोल के, ये, लेकिन आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज आई वांट यू टू क्रैक एम्स, चिपमर, दैट लेवल ऑफ एंट्रेंसेस। ओके, सो प्रॉपरली इस चीज को समझो। ठीक है, इवेंट्स को समझो, क्या क्या हुआ, लेक्चर रिपीट करके देखना, इवेंट्स को समझना और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ तक का नोट बनाओ। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का डालता है।